A very good morning to you, children. How are you all? I hope you have done well in your exams, as now the exams are over. So we are once again going to continue with our regular teaching. And today in the English class, we are going to start with lesson number 4, that is Po. Now before I begin with the lesson, once again a reminder about the precautions which we have to take during COVID-19, and that is the use of face masks, maintaining social distancing, and maintaining hand hygiene. I hope you all are taking care of all these things. So now we start with our English class, and lesson number 4 we are going to start today, that is Po. Now in the beginning of the lesson, if you see, there is some information given to us about a biography and autobiography. Now whenever we read a book, we should definitely know whether it is a biography or it is an autobiography. But before that, we should know the difference between the two books. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस है. Now, biography is a story of a person's life written by someone else. जब कोई दूसरा पर्सन हमारी लाइफ के बारे में लिख दे या हम किसी दूसरे पर्सन की लाइफ के बारे में बुक लिखें, तो ऐसी जो बुक है दैट इज अ बायोग्राफी. एंड ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन's लाइफ रिटन बाय अ पर्सन हरसेल्फ और हिमसेल्फ. जब कोई अपनी ही लाइफ के बारे में कोई बुक लिखता है तो वो बुक जो है वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है. सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बुक लें, लाइब्रेरी से खरीदे या कहीं और से भी बुक लेके पढ़ना चाहें, तो यू शुड नो वेदर इट इज अ बायोग्राफी और इट इज एन autobiography. And a small activity is given in the beginning of the chapter. They have given us the names of 4 books and we have to classify them whether it is an autobiography or it is a biography. So सबसे पहली बुक जो आप देख सकते हैं, it is Scoring History. It is written by Sunil Gavaskar as it is mentioned there. अब आप इस बुक को देखो. Since this book is about Sunil Gavaskar, he himself has written it, so therefore it is an autobiography. Now we come on to the second book, The Life of Roald Dahl, and the book is written by Henry Fields. So Henry Fields ने ये बुक लिखी है, लेकिन लिखी किसके बारे में? रोआल्ड डल के बारे में. तो इसका मतलब ये एक बायोग्राफी है, ना कि ऑटोबायोग्राफी. थर्ड बुक अगर हम थर्ड बुक इज सत्यजीत रे, द मैन एंड हिज फिल्म्स. सत्यजीत रे के बारे में है ये फिल्म, लिखी है अरुण सेन ने. सो हम इस बुक को बायोग्राफी बोलेंगे. कमिंग ऑन टू द फोर्थ बुक, द बुक इज written by Helen Keller and it is the story of my life. तो हेलन केलर ने अपनी ही लाइफ के बारे में जो स्टोरी लिखी है, therefore it is an autobiography. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. रीड अबाउट पो, a person who loved and cared for the author ever since he was a baby. The author shares some heartwarming stories of the many things Poe did for him. But who is Poe? So इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं there is a person Poe, जिसको ऑथर पो बोलते हैं. उस पर्सन ने ऑथर के लिए बहुत कुछ किया. जब ऑथर एक स्मॉल बेबी था, उस टाइम पे पो ने उनको केयर किया, उनका ध्यान रखा. नाउ वी आर गोइंग टू रीड कि पो ने ऑथर के लिए क्या क्या किया. सो लेट अस बिगिन विद सेक्शन 1. I was only 2.5 months old when I first met Poe. The time was November 1978. The place was Grandpa's house in Taipei, Taiwan. My mom took me with her to Taiwan for a visit. She could not wait to show off her brand new baby boy to all the friends and relatives back home. At first sight, Poe picked me up from mom's arms as if I were Poe's firstborn. Now this story is
about Poe, author is saying कि सबसे पहले जब वो पो को मिला था, he was just 2.5 months old and it was November 1978 जब ऑथर की मदर उनको अपनी ग्रैंडमा या नानी के घर लेकर गई थी, जो कि कहाँ था, ताइपाई, ताइवान में. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस. और वहां पे सब इतने एक्साइटेड थे उस न्यू बॉर्न बेबी बॉय को देखने के लिए दैट एवरीबडी वांटेड टू हैव अ लुक एट दैट बेबी. और सबसे पहले जो है पो ने उस बेबी को अपने आर्म्स में लिया. I made quite an impression on everybody there because I was crying as if I had been stabbed by a sharp pin. Having just been on a 15-hour flight, Mom was too exhausted to calm me down. So Po held me and cuddled me so that Mom could get some rest. Now this baby, he made a very good impression over there कि he was crying as if someone had pinched him with a pin. वो बच्चा इतने जोर जोर से रो रहा था सभी के पास जाने में जैसे किसी ने उसको पिन मार के रुलाया हो. और सिंस वो 15 आवर्स की जर्नी 15 आवर्स ट्रैवल करके आए थे, तो ऑथर की जो मम्मा थी वो भी एग्जॉस्टेड थी. शी वॉज टायर्ड. एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड. वो भी बुरी तरह से टायर्ड थी कि वो उस रोते हुए बेबी को चुप नहीं करा पा रही थी. सो दैट वॉज द टाइम जब पो ने उस बेबी को अपने लैप में अपनी गोदी में लिया और वो उनको चुप करा रही थी ताकि जो ऑथर की मम्मा है उनको रेस्ट मिल सके. मोस्ट ऑफ द टाइम यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जब आप नानी के घर जाते हैं तो आपकी नानी क्या करती हैं, आपकी नानी यही करती है ना कि बहुत सारा काम वो खुद करने की कोशिश करती हैं ताकि आपकी मदर को थोड़ा सा रेस्ट मिल पाए. तो इसी तरह ऑथर की जो पो है वो भी उसकी मदर को रेस्ट देने के लिए उस बेबी को, रोते हुए बेबी को खुद चुप करा रही थी. वॉकिंग एंड रॉकिंग मी back and forth in the living room throughout the night, Po was finally able to put me to sleep. So पूरी रात जो Po थी लिविंग रूम में उस बेबी को लेकर ऊपर नीचे बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे पीछे घूमती रही, अपनी लैप में अपनी गोदी में लेकर उनको सुलाने की कोशिश कर रही थी. एंड फाइनली द ऑथर हु वॉज जस्ट 2.5 months old, वो बेबी सो गया. Po must have had very sore arms and feet that first time we met. Although I was too young to actually remember anything, I could just picture it in my mind years later when Mom told me about it. So that time the author was just 2 months old, तो उसको याद भी नहीं था how he remembers all this, या वो हमें ये सब क्यों बता पा रहा है, क्योंकि when he grew up तो उसकी मम्मा ने उनको ये सारी बात बताई थी. और साथ में ये भी बताया था कि बिकॉज ऑथर क्राइड अ लॉट, तो उस टाइम पे जो पो हैं उनकी आर्म्स और पैर जो थे वो बुरी तरह से दर्द हो गए थे क्योंकि वो पूरी रात ऑथर को चुप कराने में लगी हुई थी. My next meeting with Po took place when I was 2 years old. Mom was offered a teaching job at a private university in Taiwan. We stayed at Grandpa's 4-bedroom flat in Taipei. Po lived there too. So उसके बाद after the first meeting, second time author जो है वो Po को कब मिले, when he became 2 years old. So why he met there? क्योंकि मदर को वहीं जाना पड़ा, उनकी मम्मा को ताइवान की ही एक यूनिवर्सिटी में टीचिंग जॉब मिल गई. सो इट वॉज द टाइम जब ऑथर को पो के घर पर ही रहना पड़ा. एंड दे हैड अ बिग फ्लैट, 4-bedroom फ्लैट, यू कैन सी दे हैव गिवन. सो उनका घर बहुत बड़ा था, इसलिए मदर और जो ऑथर थे वो पो के साथ ही रह रहे थे. आई हैड अ सिवियर nose bleeding problem at that time. For some unknown reason, my nose would bleed heavily at least 2 or
3 times a day. Both Mom and Po were very worried. Mom took me to many doctors, but none of them seemed to help. Now author is describing his condition कि जब वो अपने पो के साथ उनके घर रह रहा था तो he had a very severe nose bleeding problem. That nose bleeding problem was so severe, बहुत ही bad, बहुत ही बुरी nose bleeding problem थी कि एक दिन में कम से कम 2-3 times उसको nose bleed होता था. मॉम और पो जो हैं दे हैड टेकन ऑथर टू मेनी डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास उनको लेकर गए थे, लेकिन किसी भी डॉक्टर की कोई भी मेडिसिन उनको इफेक्ट नहीं की एंड ही वॉज हैविंग द प्रॉब्लम एज इट इज. Po asked round among friends and found out about an experienced Chinese herbal doctor. Mom decided to give it a try. So जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, anybody in the family is having any problem, तो what we do? We discuss with our friends, we discuss with our relatives कि कोई हमें उसका सोल्यूशन दे दे और प्रॉब्लम दूर हो. तो फाइनली जो है पो को किसी ने एक हर्बल डॉक्टर के बारे में बताया. हर्बल डॉक्टर इज अ डॉक्टर जो मेडिसिन अपना जड़ी बूटी से बनाता है. आपने सुना होगा कि जो हकीम होते हैं या ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो जड़ी बूटियां यूज करके अपनी मेडिसिन और ट्रीटमेंट करते हैं. सो सच टाइप ऑफ डॉक्टर जो थे वो उनको किसी ने बताया और अब मॉम ने डिसाइड किया कि हम इन डॉक्टर को भी ट्राई कर लेते हैं. जहां इतने डॉक्टर्स के पास हम गए हैं तो लेट अस गिव अ ट्राई टू दिस हर्बल डॉक्टर ऑल्सो. आफ्टर द हर्बल डॉक्टर हैड फेल्ट माई pulse from both wrists, so he wrote a long prescription in Chinese character. So वो जो herbal doctor थे उन्होंने सिर्फ author की pulse देखी, दोनों sides की arms की, दोनों wrists की pulse देखी, and after seeing the pulse he wrote a long prescription in Chinese language. उन्होंने Chinese language में एक बड़ा सा prescription. What is a prescription? प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो ही गिव्स अस ऑन अ पेज ही राइट्स अ मेडिसिन्स एंड ऑल दोस. तो ऐसा बड़ा सा प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने उनको दे दिया. मॉम टोल्ड मी दैट देयर वर एट लीस्ट 20 हर्ब्स इंक्लूडेड इन दैट प्रिस्क्रिप्शन. सो बाद में मॉम ने जब उनको बताया तो मॉम ने ये क्या बताया, दैट इट प्रिस्क्रिप्शन एट 20 हर्ब्स. वो डॉक्टर जो थे उन्होंने 20 हर्ब्स या 20 जड़ी बूटियों के नाम लिखे थे जो उनको कलेक्ट करनी थी एंड देन दे वर सपोज टू मेक द मेडिसिन. बट दैट वाज नथिंग कंपेयर्ड टू व्हाट वी हैड टू डू विद द प्रिस्क्रिप्शन आफ्टरवर्ड्स. सो इज प्रिस्क्रिप्शन में तो 20 हर्ब्स थे जो इजीली मिल गए थे. इट वॉज एन ईजी टास्क. बट आफ्टर दैट जो हमें करना था, जो उसके बाद हमें करना था, दैट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क. लेट अस सी व्हाट दे हैड टू डू आफ्टर दैट. मॉम ब्रॉट होम अ ह्यूज बैग ऑफ हर्ब्स which had been carefully measured and mixed and separately packed and sealed at the herb store. So वो जो 20 herbs डॉक्टर ने बताए थे उनकी मॉम she purchased all those, पूरी मेजरमेंट में किसको मिक्स करना था, कौन से हर्ब सेपरेट रखने थे, सब जो है वो हर्ब स्टोर से इजीली अवेलेबल हो गए और उनकी मॉम जो है वो सारे हर्ब्स को खरीद कर ले आई. टू गेट अप एट 4 o'clock in the morning and start simmering 1 pack of the herbs for 4 hours every day became a ritual for mom and Po. तो अब करना क्या था, what they were doing, they used to get up at 4 o'clock. सुबह उनको 4 o'clock उठना था. एक पैकेट हर्ब्स जो मिक्स किए हुए थे they used to take it out, उसको वाटर में डालकर 4 hours तक, सिमरिंग मीन्स ऑन लो फ्लेम, बहुत ही लो गैस पे 4 hours के लिए वाटर में वो सारे हर्ब्स डाल के उनको पकाने थे. और ये जो था अब मॉम और पो के लिए एक रिचुअल मीन्स एक रूटीन टास्क, एक डेली का काम हो गया था. दैट दे हैड टू गेट अप एट 4 o'clock एंड देन 1 मिक्सचर का पैकेट निकाल के ऑथर के लिए रोज के रोज 4 hours उस मेडिसिन को बनाने में
लगते थे. It was very important that the heat and the amount of water be just right at all times so that the medicine would work properly. So they had to take proper care that amount of water should be, the flame of the gas should be proper, because वो herbal doctor ने उनको समझाया था कि अगर वो प्रॉपरली नहीं करेंगे तो मेडिसिन का असर नहीं होगा. वी सी व्हेन वी गो टू अ डॉक्टर ऑल्सो, तो व्हाट डू डॉक्टर सजेस्ट, दे सजेस्ट ना कि कोई मेडिसिन जो है वो हमें किस वे में लेनी है, एंड इफ वी विल नॉट फॉलो दैट तो हमें मेडिसिन असर नहीं करेगी. सो इसलिए जो मॉम और पो थे वो पूरे 4 घंटे उस मेडिसिन को बनाते थे. सुबह एट 4 o'clock they used to get up and they used to spend 4 hours making that medicine. Since mom had a busy schedule at the university, Po offered to do it all alone so that mom could concentrate on her teaching. Now, in the beginning, we have read that author's mother had got a job. So, शुरू में तो mom और Po मिलकर मेडिसिन बनाते थे. But since मदर वॉज बिजी विद हर यूनिवर्सिटी वर्क, उनको अपनी जॉब भी देखनी थी, सो सारा का सारा काम जो है अब पो ने अपने सिर पे ले लिया. पो सेड दैट शी वुड मेक द मेडिसिन डेली. अब पो की ड्यूटी थी कि वो ऑथर के लिए 4 hours स्पेंड करके मेडिसिन बनाती थी, सो दैट ऑथर्स मदर कैन कंटिन्यू विद हर जॉब. सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड section 1 of the chapter. Go through it, read it 2-3 times so that everything is clear to you, and if you have any doubt we can clear in the class, and we will continue with section 2 in our next class. Till then, have a nice day.